गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के न्यूमेरिकल्स देखे थे। दोनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे। नाउ उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विड्थ ऑफ ब्लेड्स ऑफ इम्पेलर एंड डिफ्यूज़र। तो हम इम्पेलर और डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो ब्लेड्स यूज़ हो रही है उसकी विड्थ क्या होगी, उसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम करेंगे सबसे पहले कि जो मास फ्लो ऑफ एयर है, जो मास फ्लो हो रही है इनलेट से लेकर आउटलेट तक, वो कांस्टेंट है, किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। और लीकेज नहीं है तो मास विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और इससे फिर हम विड्थ ऑफ ब्लेड्स निकालेंगे इम्पेलर और डिफ्यूज़र दोनों के बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम करते हैं लेट m इज द मास ऑफ एयर फ्लोइंग पर सेकेंड, d1 इज द विड्थ ऑफ इम्पेलर प्लेट एट इनलेट। Okay, CF1 is the velocity of flow at inlet of the impeller, V1 is the volume of 1 kg of air at inlet, and R1 is the radius of impeller at inlet. So M is the volume of air flowing per second per volume of 1 kg is equal to area 2 pi R1 V1 into velocity CF1. Area into velocity 2 pi R1 means pi D1 V1. It's a circumferential area. This one is circumferential area. 2 into R1 will give D1. So this is circumferential area into velocity of flow will give A into V Q. Okay, and M into V1. This is specific volume. Okay, so M into V1 will give again meter cube per second. So we can write this, and as the air is trapped radially, we can replace this CF1 velocity of flow in axial direction with C1. Okay, we have seen in velocity diagram earlier. So M can be written as 2 pi R1 V1 C1 by V1, where V1 is the volume of 1 kg of air at inlet. Okay, so B1 can be written as this. V1 can go this side and multiplied here, and 2 pi R1 C1 will be divided. So in this way we can calculate the width of blade of impeller. Okay, by applying simple continuity equation. Okay, here again this is 2 pi R1 V1 is the circumferential area. As centrifugal compressor, in air will come out from center to in radial direction via circumference. Okay, so we have to take the complete circumferential area, that is pi D1 V1. D1 here it is written as 2 into R1, and we have to take velocity of flow here CF1 because it is moving radially. So we have to take CF1, and later this CF1 is replaced by C1. So in this way we can calculate the value of D1 by knowing the mass flow rate. Okay. Similarly, the width of impeller and outlet can also be given by this same formula, but the difference is only the suffix 1 will be replaced by suffix 2. Okay, because mass flow rate will remain same. So mass flow rate can be given by 2 pi R2 B2 CF2 by V2. Again, the width or height of the diffuser blade at the height of diffuser blade at the inlet should be same theoretically. So again, the width or height of the diffuser blade at outlet is given by, again, that R2 B2 CF2 will be replaced by values at diffuser, means RD is the radius of diffuser, BD is the width of blade at diffuser, CD is the velocity at diffuser, and VD is the volume of 1 kg of air at inlet of diffuser. Okay, so we can get M here again by keeping BD at one side, and rest of the thing other side we can calculate the width of the blade of diffuser. There suffix D represent outlet of the diffuser. Okay, so this is a simple formula for calculating the width. All the in every case means is at inlet of impeller, at outlet of impeller, and at outlet of diffuser. The formula will be same, but its suffix will be changed only as per the position of that air. It is whether it is coming inside the impeller, whether it is going outside the impeller, or whether it is going outside the diffuser, or depending upon which width is asked in the problem. Okay. Next is slip factor. Actually, slip it is assumed, generally it is assumed that in ideal case that CW2 is equal to CBL2, but the condition is not satisfied in actual practice because of various other effects. So there will always be CW2 will be less than CBL2. Okay. So the and if CW2 is less than CBL2,
there will be a reduction in the value of work. Okay, so the difference between CBL2 minus CW2 is known as slip. The difference between these two velocities is known as slip. Okay, next is slip factor. It is the ratio of actual work component upon ideal work component. In the case of ideally, what should be there? The work component CW2 should be equal to CBL2. In ideal case, so to get the maximum work output from the impeller. Okay, but it is not always the case, as we have seen that CW2 is always less than CBL2 and its difference is known as slip. So the ratio of actual work component which is actually there, that is CW2, to the ideal work component, that is CBL2, is a slip factor. Okay, so phi s is given by CW2 by CBL2, and if it is 1 then CW2 is equal to CBL2. जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी पाई एस की वैल्यू 1 होगी, स्लिप फैक्टर 1 होगा, एंड इन दैट केस स्लिप इज 0. जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो स्लिप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और स्लिप फैक्टर 1 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज स्लिप एंड स्लिप फैक्टर. थोड़ा अपन इसको स्टैग्नेशन प्रेशर के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और जो एक दो चीज़ और आएगी उसको भी कंबाइन करके हम लिखेंगे. थोड़ा देखिए इसको कि हमको पता है दैट stagnation pressure ratio P02 by P01 is given by T02 dash isentropic temperature rise divided by T01 to the power gamma minus 1 by gamma. Now this inside bracket thing can be written like this. इसका LCM लेंगे अपन 1, तो T01 will be cancelled out, again T0 dash by T01 will remain, so it can be written like this. Now this T02 dash minus T01 is isentropic temperature rise. If we want to replace this by actual temperature rise, we have to multiply it by isentropic efficiency. Then this T02 will be replaced by T02 dash will be replaced by T02. तो इसकी जगह में अपन T02 dash minus T01 जो कि isentropic temperature rise है, उसकी जगह में हम actual temperature rise into isentropic efficiency लिख सकते हैं, क्योंकि isentropic efficiency हमने देखा है isentropic temperature rise by actual temperature rise होता है. तो नेक्स्ट स्टेप में अपन वो करते हैं. ठीक है, तो ये जो T02 डैश माइनस T01 है उसकी जगह में हमने क्या लिख दिया? आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी इनटू एक्चुअल टेम्परेचर राइज. सो नाउ द प्रेशर रेशियो कैन बी रिटन एज 1 प्लस आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी इनटू एक्चुअल टेम्परेचर राइज बाय स्टैग्नेशन टेम्परेचर टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा. अब अपन देखते हैं इसको अपन क्यों कर रहे हैं. ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है हमारा पावर इनपुट फैक्टर. ओके, एक्चुअल वर्क डन क्या होता है? CP T02 माइनस T01, दिस इज एक्चुअल टेम्परेचर राइज, एंड यूलर इक्वेशन के हिसाब से निकालेंगे अपन, तो इट इज CW2 इंटू CBL2, ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ वर्क एट आउटलेट. ओके, अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो वर्क है जो हमको CW2 CBL2 मिला, ये वर्क तो कंप्रेसर वर्क कंज्यूम कर रहा है वो हमेशा इससे ज़्यादा होता है. उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन के कारण, बहुत सारे अलग अलग जगह में अलग अलग लॉस होता है. तो जो वर्क चाहिए होता है, इतना वर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्क चाहिए होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक, so actual work is obtained by multiplying this by a factor phi w, and it is called power input factor. Actual work निकालने के लिए ये this is not actual work. Actual work निकालने के लिए हमको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, that is power input factor phi w. ठीक है, so this equation is modified like this. Okay, phi w into CBL2 into CW2. अब ये हो गया हमारा सही रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे हमने पावर इनपुट फैक्टर को ऐड कर दिया है. इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो वर्क और कम हो जाएगा. हमने देखा कि वर्क ज़्यादा चाहिए होता है, तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. नाउ इस CP को हम नीचे ले गए यहाँ पे, तो T02 माइनस T01 कैन बी रिटन एज दिस. ओके, अभी जो T02 माइनस T01 आया जो हमने लास्ट में देखा था, T02 माइनस T01 यहाँ पे देखा था स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो में, इसको इस इक्वेशन में हम वो जो T02 माइनस T01 आया इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ओके, तो जो हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो का जो इक्वेशन है इट विल बी चेंज. T02 माइनस T01 की जगह मैंने ये पूरा रख दिया, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई. ओके, phi w इंटू CBL2 इंटू CW2 बाई CP. T01 पहले से था वहाँ पे, तो हमारा जो स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया. ठीक है, अगेन अब ये दोनों के बीच हमको रिलेशन पता है स्लिप फैक्टर का, दैट स्लिप फैक्टर इज CW2 बाय CBL2.
तो CW2 कैन बी रिप्लेस बाय phi s इंटू CBL2, ठीक। तो यहाँ पे हम CW2 की जगह में phi s इंटू CBL2 लिख देंगे, तो phi s और CBL2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। phi s आ गया, phi w भी आ गया, CBL2 स्क्वायर। तो स्टेगनेशन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पावर इनपुट फैक्टर एंड स्लिप फैक्टर, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं, एक नई टर्मिनोलॉजी आएगी, दैट इज प्रेशर कोफिशिएंट, ओके। प्रेशर कोफिशिएंट इट इज अ रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक वर्क टू द यूलर वर्क। हमको आइसेंट्रोपिक वर्क भी पता है क्या होता है, CP T02 माइनस T01, और यूलर वर्क भी पता है CW2 इंटू CBL2, ठीक है। तो जो प्रेशर कोफिशिएंट है ये आइसेंट्रोपिक वर्क और यूलर वर्क का रेशियो है, ठीक। अगेन अगर हम रेडियल वेन एज्यूम करेंगे और जो काउंटर फ्लो जो फ्लूइड का होता है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएगा मैक्सिमम इफिशिएंसी देने के लिए। तो दिस कैन बी रिटर्न एज CP, अगेन दिस आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज कैन बी रिप्लेस बाय एक्चुअल टेम्परेचर राइज बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी, अभी जस्ट किया था हमने थोड़ी देर पहले, एंड दिस इज कैन बी रिप्लेस बाय CBL2 स्क्वायर। तो हमारा जो प्रेशर कोफिशिएंट है वो इस तरह से आ गया, ठीक। अब अपन देखते हैं CP T02 माइनस T01 कैन बी रिटर्न एज phi w CBL2 CW2, अभी जस्ट देखा था अपन ने जब अपन वर्क इनपुट फैक्टर पढ़ रहे थे, क्योंकि एक्चुअल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, ठीक। अब यहाँ पे जो CW2 है, अगेन स्लिप फैक्टर से हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, तो क्या हो जाएगा phi s इंटू CBL2, तो ये CBL2 स्क्वायर हो गया और phi s हो गया, phi w phi s CBL2। अब ये जो CP T02 माइनस T01 यहाँ पे दिख रहा है, CP T02 माइनस T01 कैन बी रिप्लेस बाय दिस, ये पूरे का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो ये 5P है वो क्या हो जाएगा, देखिए 5P हो जाएगा, ये हमने T02 माइनस T01 इंटू CP को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे CBL2 और CBL2 कैंसिल हो जाएंगे, CBL2 है, C नहीं है, CBL2 है, तो phi w इंटू phi s इंटू आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या क्या किया कि हमने प्रेशर कोफिशिएंट, वर्क इनपुट फैक्टर, स्लिप फैक्टर और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के बीच एक रिलेशन निकाल ली, ठीक है। प्रेशर कोफिशिएंट इज एक्चुअल वर्क, सॉरी आइसेंट्रोपिक वर्क बाय यूलर वर्क, phi w इज पावर इनपुट फैक्टर, दिस इज स्लिप फैक्टर एंड दिस इज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। चार इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, और ये चारों के बीच रिलेशन होता है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या किया, हमने विड्थ निकालना सीखा कि ब्लेड का विड्थ कैसे निकालते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सेकंड हमने स्लिप देखा क्या होता है, स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ आउटलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एंड वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट। फिर हमने स्लिप फैक्टर देखा, दैट इज रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट बाय आइडियल वेलोसिटी ऑफ वर्ल, दैट इज इक्वल टू CBL2, ठीक है। तो हमने phi s भी देख लिया, फिर पावर इनपुट फैक्टर देखा कि हमको एक्चुअल वर्क निकालने के लिए पावर इनपुट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, स्लिप फैक्टर हमेशा 1 से कम होगी, ठीक। देन प्रेशर कोफिशिएंट हमने देखा कि प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है, और उसके बीच तीनों में रिलेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो। तो आज की क्लास में हमने इतना देखा, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है आज की क्लास में और पहले जो पढ़ा है दोनों को यूज़ करते हुए दो न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में जाएंगे, जो कि सेकंड टाइप का कंप्रेसर है इस रूप में जो हमको पढ़ना है। थैंक यू।